ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਫਰੈਡੀ ਸਵੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਨੁਰੁੱਧ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। Let me be clear in the sense that I am here today. I came in yesterday just to see the green transformation. There's another leader in that book, the 21 green leaders. So it's fantastic what is happening. Denmark and India and Denmark, we enjoy a fantastic friendship. Right. We created something we call the Green Strategic Partnership. What does that mean? It means that we are connecting with all the missions that Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, has launched and is launching on the 15th of August on your Independence Day. And earlier on was said Denmark has skills. You also have tons of skills, and this place is showcasing that you have tons of skills. But to combine whatever we can do on our side with what kind of visions and missions you have leading towards Viksit Bharat is fantastic. And this cooperation with sail industry is so important because that's solving a lot of the day-to-day challenges that we are facing. But it's also part of the green transition that India needs. When I was a small, handsome kid, suddenly in the beginning of the 1970s, from one day to another, we had to stop using cars. I was born on a farm. We could not use our tractors. There were no escalators, nothing. Why? Because the supply of oil from the Middle East suddenly overnight came to a standstill and halt. So we were forced to develop. Last year in Denmark, 55% of all electricity consumed, not produced, consumed, came from wind alone. Yeah. Wind alone. India, with all these missions that your Honorable Prime Minister and the government of India, they have launched over all these years, we think that's important that we come with our inspiration. आज फ्रेंच के जो एम्बेसडर हैं मिस्टर फ्रेडी, वो फिरोजपुर आए थे। उन्होंने यहाँ पे जो नया सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पहले वो विज़िट किया, और क्योंकि उसमें इंडिया और डेनमार्क की कोलैबोरेशन है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर वो आज यहाँ पे जो फिरोजपुर का जो ओल्डेस्ट एजुकेशनल ग्रुप है DCM ग्रुप ऑफ स्कूल्स, तो वो वहाँ पे दासन ब्राउन वर्ल्ड स्कूल में विज़िट करने आए, और उन्होंने यहाँ के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने स्टाफ से मुलाकात की, और जो भी टेक्नोलॉजी के साइंस के क्षेत्र में स्टेम एजुकेशन में जो स्कूल की उपलब्धियां हैं उनको बहुत सराहा। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि काफ़ी उन्होंने कंट्रीज़ में, वो करीब 5 कंट्रीज़ के एम्बेसडर हैं। सो इस टाइप की फैसिलिटीज़, इस टाइप की एजुकेशन जो यहाँ फिरोजपुर में मिल रही है, उन्होंने कहा कि बहुत रेयर है, मैंने आज तक ऐसे फैसिलिटीज़ और ऐसी एजुकेशन नहीं देखी। और यहाँ आने से पहले जो उनको फिरोजपुर के बारे में जो फीडबैक मिला था कि एक बैकवर्ड एरिया है, बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ आके उनको एक इट वाज लाइक मतलब सरप्राइज, उनको एक उम्मीद नहीं थी कि इस टाइप का एनवायरनमेंट, इस टाइप की फैसिलिटीज़ जो हैं फिरोजपुर जैसे क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि किसी भी एंगल से उनको फिरोजपुर बैकवर्ड नहीं लगता और वो यहाँ पे दोबारा आना चाहेंगे। और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया जिस टाइप से यहाँ पे सुखबीर एग्रो द्वारा और DCM ग्रुप द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है, और जिस टाइप से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन के क्षेत्र में जिस टाइप से पहलकदमी की गई है, तो ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। और उन्होंने फिरोजपुर के जितने रेजिडेंट्स हैं, सारे मीडिया पर्सन्स हैं, उनसे मुलाकात की,
और उनको अपनी शुभकामनाएं दी और उन्होंने बोला कि जो फिरोजपुर की उनकी फीडबैक है और जो फिरोजपुर में आके उन्होंने देखा है वो ना सिर्फ अपनी दिल्ली में जो डिप्लोमेट्स की फ्रेटर्निटी है बल्कि वो अपनी कंट्री में भी और बाकी क्षेत्र में भी इस बारे में बात करेंगे कि जो जनरली परसेप्शन होता है वो ठीक नहीं होता और इस टाइप के जो बॉर्डर क्षेत्र हैं वो भी किसी से कम नहीं है और उन्होंने एश्योर किया कि किसी भी टाइप की जो है एज अ कंट्री फ्रॉम डेनमार्क किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत होगी, चाहे वो स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि डेनमार्क में ऑलमोस्ट 55% जो एनर्जी है वो विंड एनर्जी से पैदा होती है। तो उन्होंने किसी भी क्षेत्र में स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में और एजुकेशन में और टेक्नोलॉजी में जो भी जो है डेनमार्क का सहयोग हो सकता है जिससे इंडिया और डेनमार्क के रिलेशंस भी अच्छे हों और लोगों को फ़ायदा भी हो, उसको उन्होंने अपनी तरफ से एक एश्योरेंस दी है कि इस टाइप के जो है विजिट्स उनके चलते रहेंगे और उन्होंने बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं दी और फिरोजपुर का इस बॉर्डर एरिया का एक बहुत ही अच्छा ओपिनियन आज उन्होंने लिया। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।